हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा जागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। और अब थोड़ा सा कल्चरल न्यूज़ देख लेते हैं। इन कल्चरल न्यूज़ today, the first is the news was Rengma Nagas were demanding the autonomous council. एंड नाउ लेट्स डिग डीप इनटू डिटेल कि न्यूज़ में क्या है, और उसके बाद फिर हम उसे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से एनालाइज करेंगे। Now, news said कि Rengma Nagas in Assam has actually in written they have demanding the autonomous district council. उनको autonomous district council चाहिए, and this demand they have come up with this demand after Karbi Anglong autonomous council was created. They said कि अगर कार्बीज के लिए लाइक जो वहाँ पे जो मिकीर वहाँ पे रहते हैं in the Mikir Hills, if you have given autonomous council for them, then why not us? It's like a competition चल रहा है कि अगर इनके लिए है तो हमारे लिए भी होना चाहिए. It might be fair or not, which is not, we are not, it's not on us to decide. Now let's move ahead. What is in the news for us? Now news says कि Rengma believed that they were first tribal people in Assam to have encountered the British. Like that's how they build their credibility. That when the British came in like 1839, when they were actually interacting with tribals as well. And then they were the first to encounter the British in 1839. And even during Burmese invasion of before actually British went to the Assam, even the kingdom in the Burma were actually also attacking the people in Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland, etc. So even the Burmese invasion of Assam in 1816 and 1819, Naga actually Rengma Nagas was present there. They give the shelter to Ahom. We know the Ahom like revolt we have seen, and we will discuss in detail about that as well. Ahom revolt. Of course, anything remotely associated with news, we bring in detail about this. So like there, you can be sure if something comes in the news, then we dig deep into that particular detail. Now let's move ahead. But it says कि existing Rangma Hills was eliminated from political news. They said despite having so much of significance कि सबसे पहले हमने ब्रिटिशर्स को भी इनकाउंटर किया, हमने बर्मीज इन्वेजन को भी देखा था, हमने तो अहम्स को शेल्टर भी दी, फिर भी हमारा नाम कहीं पे भी नहीं आता. कार्बीज को कम से कम उनके नाम पे उनको हिल तो दे दी गई. तो बट इट टॉक अबाउट कि हमारा तो कहीं भी नहीं है, ना पॉलिटिकल नाम है, ना हमारे नाम पे ऑटोनोमस काउंसिल बनाई गई है, हमारा तो रिकॉग्निशन भी नहीं है. इट टॉक्ड अबाउट कि even there was Rangma Hills, but now both are called Rangma Hills and Mikir Hills. Both are called actually like Mikir Hills only, and which is now a Karbi Anglong since 1951. So now going in detail, it talked about the Rengma Hill was partitioned in 1963 between Assam and Nagaland at the time of creation of Nagaland state. जब Nagaland state बनाया गया था, तो पहले जो entire Rengma Hills थी, उसको एक हिस्सा तो आसाम में चला गया, एक हिस्सा नागालैंड में चला गया. तो एक तो वो इससे परेशान है कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, और दूसरा वो इससे भी परेशान है कि उनको पार्टीशन कर दिया गया है. सो लाइक दे हैव टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम. आई वुड नॉट से वन, नॉट टू, बट एग्जैक्टली थ्री एक्चुअली. पहले तो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, दूसरा फिर इनको पार्टीशन कर दिया गया, तीसरा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी नहीं है. राइट ना, दे आर सेइंग कार्बीज को एटलीस्ट कार्बी को क्या रिकॉग्निशन भी मिला है, उनका पार्टीशन भी नहीं किया गया, और उनको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन के साथ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी है. बट रेंगमा नागाज फील इनजस्टिस इन दैट रिगार्ड. They feel like with the creation of Nagaland state, they were partitioned, and Karbis, जो पहले Mikir, like Karbis and Mikir, actually Karbi and Mikir are the same one and same thing. इन्हीं को Karbi कहते हैं, इन्हीं को Mikir कहते हैं. Till 1976, they were indigenous tribal people of Mikir Hills. तो वहाँ पे दो hills थी, एक आपकी रेंगमा हिल थी और एक मिकीर हिल्स थी, और मिकीर पीपल यहाँ पे रहते थे. बट अब क्या किया, पूरे को ही मिकीर हिल्स या फिर कार्बी एंगलोंग डिक्लेयर कर दिया. अब हम देखेंगे मैप में ये कहाँ पर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स समथिंग इज इन न्यूज, उसको मैप में पॉइंट आउट करना, मैपिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एवरी डे एटलीस्ट स्पेंड 10 to 20 minutes एवरी डे फॉर द मैप रीडिंग एक्सरसाइज, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे रखोगे तो चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी. Now, Rangma Hills and Mikir Hills are two separate entities till 1951. 1951 से पहले वो एक entity थी, पर उनको merge like two separate entities थी, but 1951 के बाद उनको एक बना दिया गया. Now, Karbis have no history in Rangma Hills. What it is trying to say is कि we are two separate entities before, we were two separate entities before 1951. We are even now two separate entities, but on the political map and in the political identities, we are not being recognized as such.
people are these are the people who are presently living in the hills which are from Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, ये पूरा spread है, and they speak dialect which are different from the Karbi people. They said कि we do not identify with Karbi people, they have different dialogue, they have different dialect, and they have different culture, so give us a separate identity. And it talked about how Karbi Anglong Autonomous Council, which is being created, which has population of around 12 lakh, Karbis only constitute 3 lakh. The other are non-Karbis. So despite like out of like 3 lakh out of 12 lakh are only Karbis, rest 9 lakh who are not non-Karbis, they don't have their own identity on the political map or in the political entire institutional infrastructure. So it says कि you know the like, so it is important to understand now Rengma itself कि अब उनको थोड़ा history और culture को समझ लेते हैं, because since they are in news they can be asked. Now Rengma is a kind of a Naga tribe found in Nagaland and Assam state of India. According to local tradition, Rengmas and Lothas were once single tribe. पहले Rengmas और Lothas एक होते थे, अब Rengmas अलग हैं, Lothas अलग हैं, और Rengma खुद को Karbi से भी अलग समझते हैं. So there are various many tribe in northeast of India, and it is because of like multiple ethnicity and identities are playing role in there. A lot of conflict is being seen there, and each one want autonomy, each one wants sovereign state for themselves, because of which the peace is difficult to establish in the northeast. Remember, this is the biggest problem of northeast, that multiple ethnicity are not able to bring a model that is cooperative. Instead, they are mostly in conflict with each other. So ethnicity is not the problem. The problem is their model of not being able to live in cooperation with each other. अब उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारे ही फैक्टर हैं. डेवलपमेंट ना होना, जब स्कैसिटी ऑफ रिसोर्स होती है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एंड देन यू से दीज पीपल डू नॉट नो हाउ टू लिव विच अदर. आप रिसोर्स भी तो देखिए, रिसोर्स केयर से इसीलिए लड़ रहे हैं, right now. So there is no one factor, there are multiple factor, but please like keep in mind multiple ethnicity is also one of the factor which is being magnified and being played by the reason that there is lack of resource and lack of economic development in the northeast. ठीक है, तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, उसको आसानी से पॉलिटिक्स में प्ले किया गया है, जिसकी वजह से एथनिसिटी और स्प्लिट हो गई है. Now next is the record of Rengmas has the record of Rengmas conflict with Angami Nagas. जो Rengmas हैं उनका Angami Naga से भी लड़ाई रहती है, and there was time when slavery used to be practiced among Rengmas, और तब उसको वो इट्सा केसा या मीनू गितुन्यू कहते थे. अब याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बाकी देखा जाएगा. और ये मोस्टली मिकीर हिल्स या फिर कार्बी आंगलोंग में मिलते हैं, लाइक ट्राइबल पीपल. एंड अकॉर्डिंग टू लाइक जस्ट रिमेंबर, रेंगमा कहते हैं कि नहीं, आप उसको मिकीर हिल कहते हैं, रेंगमा और मिकीर तो डिफरेंट हिल्स हैं, आपने दोनों को मिक्स कर दिया है. नाउ दे माइग्रेट टू मिकीर हिल्स इन द अर्ली 1800 में ये यहाँ पर आए थे. अर्ली दे वर लिविंग समवेयर एल्स. And now understanding the culture, in terms of understanding culture, their harvest festival is called Gada. This Gada is their harvest festival, which is the end of the agriculture season. Often like they like ऐसे पूछा जाता है ना कि आप ये एक तरफ आपका ट्राइब्स के नाम बता दिए और दूसरी तरफ आपको फेस्टिवल बता दिए, and now like identify which one is correctly matched, or if not correctly matched, you match them. So Gada is the harvest festival of Rengma, which marks the end of the agriculture season. और इसी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन. तो यहाँ थोड़ी सी चीज से ना कंफ्यूज करके आपको क्या कर सकते हैं, दे कैन कंफ्यूज यू. सो बी केयरफुल अबाउट दिस. क्लोथिंग क्या होती है ना, क्लोथिंग हैज अ गुड सिग्निफिकेंस एंड एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ क्लास स्टेटस एंड पोजीशन, जिसको आप अपने सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में आसानी से यूज कर सकते हो. राइट ना, clothing in Rengmas is a sign of a status in there. Per se, Rikho is a kind of a cloth जिसमें बेसिकली लाइक जिसमें नैरो ब्लैक बैंड्स होते हैं, कि ऐसे इस तरीके से ना आपको ब्लैक बैंड्स मिलेंगे. Rikho is a kind of a cloth वो लोग पहनते हैं जिन्होंने who have never killed an enemy or great feast. मतलब अगर आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है तो आपको ऐसे ब्लैक एंड वाइट जिंदगी जीनी पड़ेगी. राइट, मतलब बड़ा काम नहीं किया तो ब्लैक एंड वाइट जिंदगी जियो. मतलब ये सिर्फ ये लाइक नैरो ब्लैक बैंड्स वाले ही कपड़े आप पहन सकते हो. बट जो यंग मैन होते हैं वो डार्क ब्लू, उनके रंग में थोड़े लाइक यंग पीपल हैव लाइक सम कलर इन लाइफ. आप जितने बड़े हो जाते हैं आपके कलर कहीं डिसअपियर होने लगते हैं. सो लाइक यूथ हैज अ साइन ऑफ डार्क ब्लू क्लोथ.
And alungsu is a cloth for well-to-do men. Like alungsu is also cloth जो कि well-to-do men पहनते हैं. So like they have the different set of clothes for different class, status, age वगैरह को represent करने के लिए. Dark blue म्योतू शू कहते हैं उसको young men के लिए. alungsu आपका basically well-to-do men के लिए होता है. रिखो basically आपके जो this is for the people like who have never killed an enemy और कुछ आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है. तो now लेट्स अंडरस्टैंड नागा इटसेल्फ, क्योंकि हमने रंगमा नागा देखे, हमने अंगामी नागाज देखे. सो टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज नागा इज नॉट अ सिंगल ट्राइब विच ऑफन पीपल कंफ्यूज. नागा इज नॉट अ सिंगल ट्राइब बट एन एथनिक कम्युनिटी में बहुत सारी ट्राइब्स होते हैं, जिसमें से 19 मेजर के नाम का है आओ, अंगामी, चांग्स, चाकेसांग, कबुईज, कछरियाज, खेन मंगास, कोनियाक्स बहुत फेमस होते हैं, कुकीज़ भी बहुत फेमस होते हैं, लोथास अभी हमने पढ़े, रेंगमा तो पढ़े ही हैं. फिर आपके माओज हैं, मिकीर हैं, फोम्स हैं, सेंक्टम्स हैं, सीमास हैं, तंगखुल्स हैं, याम चुंगर हैं, जिलांग है. आपको जितने याद हो देख लीजिए, बट कुछ न्यूज़ में रहे हैं, जैसे कोनियाक बहुत न्यूज़ में रहते हैं, कुकीज़ न्यूज़ में रहते हैं, लोथास अभी हमने पढ़ा है, मिकीर न्यूज़ में रहते हैं, रेंगमास न्यूज़ में रहते हैं. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट नागा ट्राइब्स. सो नागा इज़ नॉट अ सिंगल ट्राइब बट इज़ एन एथनिक कम्युनिटी जिसमें बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं एंड दे बिलोंग टू द इंडो मोंगलॉइड फैमिली. राइट, इंडो मोंगलॉइड फैमिली से बिलोंग करते हैं. So this was like understanding Nagas. Now कुछ map exercise, like do remember कि अभी हम कहते हैं ना कि कार्बी आंगलोंग किधर है, तो ये आपका कार्बी आंगलोंग का मैप है. like there it is, मणिपुर के यहाँ पे इधर आपका कार्बी आंगलोंग इधर आपका आता है. So I'm sorry, this is Greater Nagaland. So right, even I was confused. Okay, so this is Greater Nagaland. Now नागास को समझने के साथ में ही आपको ये भी समझना है कि what is Greater Nagaland. नागास आर द पीपल जो हमेशा से ऑटोनमस रहे थे. राइट ना, दे लाइक ऑटोनमस इन टर्म्स ऑफ कि उनके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं था. दे सेड कि सोवरेनिटी इज आवर प्राइम प्रिंसिपल. हम इसी पे काम करते हैं, हमें अपने ऊपर गवर्नमेंट नहीं चाहिए. सो दे क्लेम सोवरेनिटी जो पहले से था एंड दैट्स व्हाई दे इवन नाउ द डिमांड ग्रेटर नागालैंड स्टेटहुड, जो कि और जो नागालैंड है वो बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड है. नॉट जस्ट उनको बेसिकली सोवरेनिटी चाहिए, दे ऑल्सो वांट कि जितने भी नागा पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनको क्लब करके एक बना दी जाए. एंड द प्रॉब्लम इज दिस इज स्प्रेड अक्रॉस सेवरल स्टेट्स. अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, आसाम में है, नॉट जस्ट दिस, इंडिया से भी बाहर है, ये म्यांमार में भी है. Because of this the insurgency is being seen even from Myanmar. जो आपकी NSCN है, NSCN इसाक मोबिया या खापलांग है, जो म्यांमार से आपके थोड़ी इंसर्जेंसी देखी जाती है. वो इसलिए देखी जाती है बिकॉज सम ऑफ दी नागा पॉपुलेशन इज फाउंड इवन इन म्यांमार. देखिए इंडिया की बाउंड्री से ही बाहर जा रहे हैं, ये यहाँ पे भी रहते हैं एंड दे आर डिमांडिंग कि इसको पूरा एक नागा प्रदेश इनको डिक्लेयर कर दिया जाए, विच इज़ लाइक इंडिया में खुद ही कन्फ्लिक्ट है और यहाँ से इंडिया से बाहर की भी डिमांड की जा रही है. Now let's move ahead to understand what is Ahom revolt. Understanding Ahom revolt is that Ahom revolt actually took place in Assam after first Anglo-Burmese war. Now like Anglo-Burmese war एक से ज़्यादा बार हुई, 1824 में हुई, फिर 1815-60s के आसपास भी हुई है. It was during first Anglo-Burmese war that Ahom revolt actually took place because they started taking this like उस रीजन को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करने लगे थे. एंड इट वॉज अगेंस्ट की नॉट जस्ट दिस, वो अहोम रीजन को भी ब्रिटिश एम्पायर एनेक्स करने लगा, अगेंस्ट विच अहोम विच वॉज एक्चुअली अ किंगडम एट दैट टाइम, दे स्टूड अगेंस्ट देम एंड दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय द गोमधार कोवर. गोमधार कोवर इसके फेमस लीडर थे. इसको याद रखें, काफ़ी सारे फेमस जो आपके जो न्यूज़ में रहे हैं ये लाइक जो आपके वो रहते हैं, ये जो आपके मूवमेंट है इनके लीडर्स, just try to remember that because ये काफ़ी famous leaders can be asked in your exams. So Gomdhar Kanwar was actually the leader and but like revolt unfortunately could not succeed and it was suppressed by the Britishers. अब Ahom was basically a kingdom at that time in Assam, जो कि वहाँ से भी आगे देखिए कार्बी भी आ जाते हैं, यहाँ पे दीमापुर वगैरह भी आ जाते हैं. ये आसाम को कभी एक बार पूरा का पूरा रूल करते थे. So this was Ahom kingdom. थोड़ी सी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. नाउ अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी जो प्लेसेस आपके न्यूज़ में दिए गए थे, अब थोड़ा सा डिटेल में मैप में पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बी आंगलोंग. इट इज़ बेसिकली कार्बी आंगलोंग इज़ अ कार्बी मेघालय प्लेट्यू विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इटसेल्फ. ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो.
ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो कि ये जो इंडिया है यहाँ पे आपका प्लेट्यू एग्जिस्ट करता है, और हिमालय तो आपके बाद में बने। और आपको लगता होगा कि ये प्लेट्यू सिर्फ यहाँ तक है, नहीं ऐसा नहीं है, आपका नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा पार्ट इसका एक्सटेंड करता है इस प्लेट्यू का, और वो जो पार्ट एक्सटेंड करता है उसको कार्बी मेघालय प्लेट्यू कहते हैं। तो ये आपका कार्बी आंगलोंग इस तरफ इस तरीके से आपका आता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसमें दो पार्ट हैं, कार्बी आंगलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू। इसमें ये दो आते हैं, आपका मेघालय भी आ जाएगा और कार्बी आंगलोंग भी आ जाता है। अब देखो वेरियस हिल्स विच वर इन न्यूज, तो हम एक एक करके उनको डिटेल में देखते हैं। पहले आपके बिकेर हिल्स आपकी न्यूज में थी, तो बाकी हिल्स को भी देख लेते हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया, दीज आर फेमस हिल्स ऑफ द मेघालय, आर नेम्ड ऑन द फेमस ट्राइब्स इन द मेघालय। मेघालय की फेमस ट्राइब्स के नाम पर इनको दिया गया है। नेक्स्ट इज योर मीजो हिल्स, आपकी जो मिजो में, इसको ये ब्लू माउंटेन्स भी शायद इनको कहते हैं, प्लीज डू करेक्ट मी इफ इट इज नॉट ट्रू, आप देखें इसको ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। दूसरा आपका मणिपुर हिल्स है। फिर बरेल रेंज है, ये जो आपकी यहाँ पर है, यहाँ पे आपके नागा हिल्स आते हैं, और ये आपका पटकाई वूम है। सो दीज आर वेरी फेमस लाइक इंपॉर्टेंट हिल्स, प्लीज मैप एक्सरसाइज में इनको ध्यान रखें। एंड विद दिस वी आर डन विद लाइक टुडेज कल्चरल न्यूज, एंड नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर एसोसिएटेड विद अहोम रिवोल्ट। अब अहोम रिवोल्ट हमने पढ़ा, और अब देखते हैं कौन सा इंसान इसमें से एसोसिएटेड था। सीधो कानो, नो, सीधो कानो इज एक्चुअली ही लेड द अनदर रिवोल्ट, इट इज नॉट द अहोम रिवोल्ट ही लेड। देन महात्मा गांधी, अब ये रिवोल्ट तो 18 के आसपास का है, महात्मा गांधी तो 1905 एंड आफ्टर दैट ही लाइक 1915 he actively participated, not 1915 he came, and after 1617 he actively participated in Indian politics. So it is not Mahatma Gandhi, obviously date does not match. Then Lord Ripon, लॉर्ड रिपन भी नहीं है, क्योंकि लॉर्ड रिपन वॉज लाइक अराउंड 1884, तो उस टाइम पे 1882 1884 के आसपास थे, तो डेट डज नॉट मैच। अगर आपको नाम भी नहीं आता तो डेट ध्यान रखिएगा, तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो इट इज नाउ वी आर लेफ्ट विद गोमधार कन्वर, एंड वी ऑल्सो नो, अभी हमने पढ़ा था कि गोमधार कन्वर वॉज इन न्यूज फॉर द सेम लाइक गोमधार फॉर द अहोम रिवोल्ट। Okay, so with this we are done with today's cultural news. I hope the entire news was useful to you, and if you feel so, stay connected to us. Also, like, take care of your health, which is very important. So stay at home, stay healthy, and stay safe, and stay connected to AQYAS.